Dear student, I am Ranjit, your math teacher from Paramount Public School, Chima. Beta, yesterday I have explained you properties of multiplication of integers, and we have solved exercise 1.1 up to question 5th. Today we will continue exercise 1.1 from question 6th onward. Question 6th is, beta, what will be the sign of product if we multiply together, first part, 8 negative integers and 1 positive integer. I have already explained in the properties, if negative integers are multiplied even number of time, then sign is positive. If negative integers are multiplied odd number of time, then sign is negative. Okay, beta. Positive integers have no role in the sign of your answer because their sign is positive. And now how many negative integers are there, beta? 8 negative integers are multiplied together with 1 positive integer. So 8 is a even number. Then what will be the final answer? If an even number of time negative integers are multiplied, then final answer will be a positive number. Clear? Very easy. You have to predict only how many negative integers are there. If they are even number of time, then sign is positive. If they are odd number of time, then sign is negative. Suppose if there are 9 negative integers, then sign will be negative. Clear, beta? Very easy. Yes, beta. Second part, you have to predict the sign of your answer. If 21 negative integers are multiplied with 3 positive integers, how many negative integers, beta? 21. 21 is a odd number, then sign of your answer will be a negative. Sign of your answer will be negative. Very easy. Yes, beta. Third part, 199 negative integers are multiplied with 10 positive integers. As like the previous first and second part, you have to try this part by yourself. I'm sure you will solve it very easy. Yes, beta. Question 7th, state which is greater. You have given 2 number. You have to find which number is greater. I will solve is second part. Is first part I will give you for the practice. You can try with the help of second part. And beta, in second part we have given 2 number. First number and this year second number. Before starting it, I am giving you some point you have to keep in mind. First of all, beta, if more than 1 operations are there, like here minus, here multiply. अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑपरेशन है, ऑपरेशन मीन्स बच्चे मैथ में 4 ऑपरेशंस होते हैं, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑपरेशन हो, एक से ज्यादा साइन हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सा साइन हमने सॉल्व करना है? हमने पहले यहां पर मल्टीप्लाई करना है, जहां हमने पहले क्या करना है? माइनस करना है. तो वो आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नियर, आई थिंक इन बॉडमस रूल एक्सरसाइज 1.3 में. मैं यहां पर थोड़ा सा बता रहा हूं, अगर एक से ज्यादा ऑपरेशन हो तो आपने ये फॉर्मूला ये अपने दिमाग में रखना है, बॉडमस, BODMAS, बॉडमस. B फॉर बेटा होता है ब्रैकेट, O फॉर होता है ऑफ, D फॉर बेटा डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन. ये मीनिंग है इसका, आपने दिमाग में रखना है बॉडमस. अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. जो आपका डिजिट पहले आ रहा है वो ऑपरेशन आप सबसे पहले करोगे. सबसे पहले क्या हम सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट. ब्रैकेट सिर्फ वही आपने देखनी है जिस ब्रैकेट में एक से ज्यादा नंबर है. ओके, अंडरस्टूड. और फिर क्या करोगे आप? ऑफ. ऑफ में नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज में बताऊंगा ऑफ, वहां पर हम डिटेल में चलेंगे. तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे. यहां पर इतना समझ लो बस, पहले ब्रैकेट. कौन सी ब्रैकेट होगी? जिस ब्रैकेट में एक से ज्यादा नंबर है और उनमें कोई ऑपरेशन है.
फिर आप क्या सॉल्व करोगे, डिवीजन अगर है तो, फिर क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होगा, एडिशन, उसके बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। एक तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखो। ओके बेटा। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास दो माइनस के नंबर हैं, जैसे -2 -3, अगर दोनों नंबर माइनस में हो बेटा तो हमने क्या करना है, उन नंबर का प्लस करना है। हमने क्या करना है, उन्हें प्लस करना है, ऐड करना है हमने उन्हें, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। 3 + 2 क्या होगा, 5। साइन कौन सा आएगा बेटा, माइनस का साइन आएगा। साइन कौन सा होगा, माइनस का साइन होगा। क्लियर बेटा, अंडरस्टूड। अगर दो नंबर माइनस में हैं तो क्या करोगे आप, उन्हें ऐड करोगे, पर साइन कौन सा होगा, माइनस का। जैसे 3 + 2 5 हो गया, पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ये साइन कन्वेंशन की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो वो आप अच्छे से देख लो। ओके, अंडरस्टूड बेटा। इवन आई एम एक्सप्लेनिंग लिटिल बिट हियर। ओके, अगर आप हमारे पास एक नंबर माइनस में है, एक प्लस में है, जैसे -2 + 3, तो आप क्या करोगे, उन्हें माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे। अंडरस्टूड। एक नंबर माइनस है, -2, एक नंबर प्लस है, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 3 - 2 क्या हो गया, 1 हो गया बेटा। अंडरस्टूड। और साइन कौन सा आएगा हमारे पास, जो नंबर ग्रेटर है इन दोनों में से। 3 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 3 है ना, 3 बड़ा है ना। 3 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो यहां पर प्लस आएगा। तो साइन मीन्स आप कौन सा डालोगे यहां पर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। क्लियर बेटा, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, -3 + 2, देखो अब एक नंबर माइनस में है, एक प्लस में है, होगा तो क्या, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस करेंगे हम। 3 - 2 हमें पता है क्या आता है, 1 आता है, पर साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है। 3 और 2 में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है ना। 3 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहां पर क्या आएगा आपका साइन, माइनस का साइन आएगा। अंडरस्टूड। और एक और साइन कन्वेंशन हम मल्टीप्लाई में यूज करते हैं। माइनस को हम माइनस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। एक नंबर माइनस में है, दूसरा माइनस में है, दो नंबर माइनस में है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, प्लस को माइनस से, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आपका क्या आएगा, माइनस का आएगा। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर। माइनस को माइनस पर करते हो मल्टीप्लाई, प्लस आता है, प्लस को माइनस पर करते हो या माइनस को प्लस पर करते हो तो क्या आता है, माइनस आता है। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर। तो यहां पर हम देखो कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमें ये रूल यूज करने पड़ेंगे। ये आप ऑलवेज, दिस इज द बेस ऑफ अलजेब्रा। ओके, कीप इन माइंड दीज स्टेप्स ऑलवेज। ओके, ये देखो हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा है, 8 - 9 × 10। तो मैंने क्या बताया, पहले क्या सॉल्व करना है हमने, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये पड़ी है। ब्रैकेट में कौन से नंबर है बेटा, 8 और 9। 8 - 9, एक नंबर प्लस है, एक माइनस है। ओके, एक नंबर प्लस में हो, एक माइनस में हो, क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। ओके, तो 9 - 8 क्या आएगा, 1 आएगा। बट साइन कौन सा होगा, जो नंबर बड़ा है। 9 और 8 में बड़ा कौन सा बेटा, 9। 9 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहां पर क्या आएगा, -1। ओके, अंडरस्टूड बेटा। सो -1 × 10 कितना हो गया, -10 हो गया। 10 × 1 1, साइन क्या आ गया, माइनस का आ गया। दूसरा नंबर देखो अपना, 8 - 9 × 10। अब यहां पर ब्रैकेट नहीं है, पर ऑपरेशन दो है हमारे पास, माइनस और मल्टीप्लाई। एम फॉर मल्टीप्लाई, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, दो ऑपरेशन है। पहले कौन सा आ रहा है, बॉडमस में पहले कौन सा आ रहा है, एम आ रहा है ना, एस बाद में आ रहा है ना।
मीन्स जो पहले आ रहा है वो पहले सॉल्व करोगे आप। पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 माइनस 9 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। अब सेम एक नंबर प्लस एक माइनस, क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। 90 माइनस 8 कितना हो गया बेटा, 82। ओके, और साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है। 8 और 90 में से बड़ा कौन है, 90 बड़ा है। 90 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस 82 आ गया। अब हमारे नंबर ये आ गए, ये रिजल्ट आ गया इनका। और -10 -82, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, आप जानते हो -10 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि साइन क्या है, माइनस का है। अगर यहां पर प्लस होता, 10 और 82 होता, प्लस का साइन होता, तो कौन सा बड़ा होता है, 82 बड़ा होता। बट यहां पर माइनस है तो साइन क्या होगा, कौन सा बड़ा होगा, -10 बड़ा होगा -82 से। हमने क्या लिखना था, स्टेट विच इज ग्रेटर, बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है बेटा, -10 वाला बड़ा है, तो -10 वाला कौन सा नंबर है। सो ग्रेटर नंबर हमारा आ गया, -10 वाला नंबर कौन सा है, वो 8 माइनस 9 मल्टीप्लाई 10। ये नंबर क्या हो गया आपका, ग्रेटर नंबर हो गया, बड़ा नंबर हो गया। क्लियर बेटा, अंडरस्टूड। यस बेटा, क्वेश्चन 7th का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, जैसे मैंने सेकंड किया वैसे आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट अपने आप सॉल्व करना है। यू हैव टू ट्राई दीज बाय योरसेल्फ। फर्स्ट पार्ट बेटा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन आल्सो चेक फ्रॉम हियर। एंड थर्ड पार्ट you have to try it by yourself. Understood beta? Yes beta, question 8th very easy. First part, if a multiply -1 is equal to -30, is the integer a positive or negative? आपके पास एक इंटीजर a है जिसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कितना आंसर आ रहा है, -30 आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन ये है भाई, ए कौन सा इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, यहां पर देखो एक नंबर नेगेटिव है, आंसर भी आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओके, मींस अगर यहां पर नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता, प्लस होता। अगर ए नेगेटिव है, सपोज करो ए नेगेटिव होता, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आना चाहिए था, यहां पर प्लस आना चाहिए था। बट यहां पर क्या है, माइनस। दैट मीन्स आपका इंटीजर ए क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। इंटीजर ए क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो यहां पर तो यही पूछ रहा है आपसे भी, इंटीजर ए पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। सम टाइम अगर आपसे पूछ ले, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन तो हमने बता दिया पॉजिटिव है, व्हाट इज इट्स वैल्यू। अब देखो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आएगा। ओके, अंडरस्टूड। -1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं को मेरा आंसर क्या आए, मेरा आंसर -30 आए। तो -1 को अगर मैं 30 पर मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है मेरा, -30 आता है ना, वही बनेगा। तो आपका इंटीजर ए क्या है, +30। क्या है, +30। क्वेश्चन आपका यहां तक हो गया, साइन तक हो गया। सम टाइम ही कैन आल्सो आस्क इन द एग्जाम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर ए, देन इन दैट वे यू कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू। ओके बेटा, इट्स सेकंड पार्ट यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ बेटा। सेकंड पार्ट वेरी इजी। इफ ए मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 30, is the integer a positive or negative। यहां पर हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 30। आंसर क्या आ रहा है, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो a को, आंसर क्या आ रहा है, प्लस। तो आप इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हो a का साइन क्या होगा। ओके, ट्राई इट बाय योरसेल्फ बेटा, वेरी इजी। क्वेश्चन 9th बेटा, सेकंड पार्ट, वेरीफाई फॉलोइंग। यू हैव टू वेरीफाई दिस साइड इज इट इक्वल टू दिस साइड, मीन्स ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है।
Second part I am solving. First part is easy. With the help of second you have to try it by yourself. I will give you at the end. Now बेटा पहले ये साइड देखो, this side -23 -5 प्लस 90. लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? तो पहले मैंने आपको क्या बताया, यू हैव टू सॉल्व द अकॉर्डिंग टू दैट रूल. बी फॉर ब्रैकेट, वी विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. तो ब्रैकेट कौन सी में प्रोसीड करना है? जिस ब्रैकेट में एक से ज्यादा नंबर है. एक से ज्यादा ब्रैकेट में एक से ज्यादा नंबर कहां पर है? यहीं पर है ना. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो -23, अब देखो यहां पर -5 प्लस 19, -5 प्लस, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको. प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा. प्लस कितने भी टाइम है, प्लस चाहे ऑड टाइम हो, इवन टाइम हो. जैसे हम 2 × 2 ओके करेंगे तो क्या आएगा? +8 ही आएगा, क्योंकि सभी नंबर क्या है? प्लस के हैं. अगर हम 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम करेंगे प्लस, तो भी क्या आएगा? हमारा आंसर प्लस के आएगा. प्लस को कितनी बार चाहे आप मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? वो प्लस ही होगा. ओके, ये कंफ्यूज कर रहा है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? प्लस ही होगा बेटा. सो इट इज +19 -23. आप देखो यहां पर एक नंबर -5 है, एक क्या है? +19. एक माइनस का, एक प्लस का. मैंने आपको बताया एक नंबर माइनस में हो, एक प्लस में हो तो क्या करोगे आप? माइनस करोगे ना, सब्ट्रैक्ट करोगे उनको. ओके, तो 19 - 5 क्या हो गया बेटा? 19 - 5 14. साइन कौन सा आएगा? जो नंबर बड़ा है. बड़ा कौन सा है 19 और 5 में से? 19 बड़ा है, तो 19 का साइन क्या है? प्लस. तो यहां पर भी क्या आएगा? प्लस. अब देखो यहां पर ये ब्रैकेट आ गई हमारे पास. तो यहां पर क्या है? अगर दोनों ब्रैकेट हो दैट मीन्स यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा. यहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. मीन्स अगर दोनों ब्रैकेट है ऐसे है. ओके, अंडरस्टूड. दैट मीन्स -23 इज मल्टीप्लाइंग विद 14. कोई साइन नहीं है यहां पर. यहां पर देखो कोई साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स यहां पर ब्रैकेट में अगर कोई साइन नहीं है तो वहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. ओके बेटा, अंडरस्टूड, क्लियर. सो -23 को आप क्या कर दो? 14 पर मल्टीप्लाई कर दो. सो 23 को हम करेंगे 14 पर. 4 3s are 12, 4 2s are 8, 8 and 1 9, 3 and 2 2, 9 + 3 12 and 2 and 1 3. 14 को 23 पर किया तो कितना आ गया? 322. साइन बेटा कौन सा आएगा? व्हाट इज द साइन? कितनी बार है नेगेटिव नंबर? 1 टाइम है ना, तो साइन क्या होगा? और माइनस होगा. तो इट इज -322. क्लियर बेटा, अंडरस्टूड. ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड ये आ गई हमारी. अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड ये वाली सॉल्व कर लेंगे. राइट हैंड साइड है हमारी -23 मल्टीप्लाई -5 प्लस -23 मल्टीप्लाई +19. ओके बेटा, अब देखो यहां पर ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई. तो अकॉर्डिंग टू दैट पहले कौन आ रहा है? मल्टीप्लाई आ रहा है ना, प्लस तो बाद में आ रहा है. तो पहले क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे. जहां पर भी मल्टीप्लाई है पहले उसको सॉल्व कर लो. -23 मल्टीप्लाई -5. 23 को 5 पर मल्टीप्लाई कर लो. 5 3s are 15, 5 2s are 10, 10 and 1 11, 115 हो गया. तो साइन क्या होगा? यहां पर माइनस को माइनस पर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? प्लस आता है. तो +115 हो गया बेटा, अंडरस्टूड. अब यहां पर क्या है? -23 मल्टीप्लाई +19. ये क्या? ये साइन क्यों डाला? इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला. मल्टीप्लाई करते हो प्लस को, यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर प्लस है. दैट मीन्स यहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई साइन ही है. वो आपको कंफ्यूज कर रहा है. अगर मैं इसको ऐसे भी डाल दूं तो ये क्या है? देखो प्लस ही है ना, +19 है. ओके बेटा,
तो वो आपको कंफ्यूज कर रहा है ये साइन डालकर. यू हैवंट बी कंफ्यूज देयर. ओके बेटा, अंडरस्टूड. साइन उसने क्यों डाला? टू कंफ्यूज यू. ओके बेटा, सो ये क्या है? -23 मल्टीप्लाई 19 ही है. प्लस अगर यहां पर कोई भी साइन नहीं है दैट मीन ये यहां पर क्या है? प्लस है. तो यहां पर क्या डाल दिया उसने? प्लस डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए. तो 23 को 19 पर कर लो मल्टीप्लाई. 23 मल्टीप्लाई बाय 19. 23 19 9 3s are 27, 9 2s are 18, 18 plus 2 20. ओके बेटा, 1 into 3 3, 1 into 2 2, 7 3 2 plus 2 कितना हो गया? 4 हो गया. मीन्स ये क्या आ गया? 437. अब देखो साइन -23 मल्टीप्लाई 19. एक नंबर है ना नेगेटिव वाला, तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम नेगेटिव नंबर हो तो साइन क्या आता है? माइनस का साइन आता है. ओके बेटा, क्लियर, अंडरस्टूड. एंड बेटा हियर 115. अब क्या हो रहा है? प्लस को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस से. तो मैंने आपको बताया प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस से, तो साइन क्या आता है? माइनस आता है. तो यहां पर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा. सो इट इज 115 माइनस 437. क्लियर बेटा. अब एक नंबर क्या है? प्लस, एक क्या है? माइनस. एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं. सो 437 में से 115 माइनस कर दो. 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3. तो ये कितना आ गया? 322. व्हाट अबाउट द साइन? साइन कौन सा आता है? एक नंबर माइनस हो एक प्लस हो तो क्या करते हैं? माइनस. साइन कौन सा आता है? साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. 115 437 कौन सा बड़ा बेटा? 437 बड़ा है ना. 437 का साइन क्या है? माइनस. तो यहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा. क्लियर बेटा. ये होगी हमारी राइट हैंड साइड. मीन्स अवर राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू -322. लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आ रही थी? -322. राइट हैंड साइड भी कितनी आ रही है? -322. तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. वेरी इजी. ओके बेटा, अंडरस्टूड. अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रोसीड एंड गेट द आंसर. ओके, कीप इन माइंड साइन कन्वेंशंस. यस बेटा, क्वेश्चन 9th second part I have solved beta. First part you have to try by yourself. You have to verify this side is equal to that. Okay, understood? As like the question second, you have to proceed in part first. I'm sure you will solve it very easily. Yes beta, question 10th. Which of the following statement are true? You have to tell which statement is true, which is false. First, the product of a positive and a negative integer is negative. क्या कह रहा है? एक पॉजिटिव इंटीजर की प्रोडक्ट एक नेगेटिव इंटीजर से क्या होगी? नेगेटिव होगी. हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक नेगेटिव इंटीजर से. तो मैंने बताया पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. नेगेटिव आएगा. तो वही ये बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव and a negative integer is negative, so it is true. ये क्या हो गया? ट्रू हो गया. सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव. 3 इंटीजर नेगेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा बेटा? नेगेटिव ही होगा. ओके, ये आप जानते हो अच्छी तरह से, मैंने टर्म में एक्सप्लेन कर दिया इसे. तो ये भी ट्रू हो गया. थर्ड पार्ट, ऑफ द 2 इंटीजर इफ 1 इज नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव. वो क्या कह रहा है? 2 इंटीजर हैं, दोनों में से क्या है? 1 इज नेगेटिव. अगर एक नेगेटिव है तो उन दोनों का प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव. वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये कह रहा है. अब दोनों इंटीजर में से एक नेगेटिव है, एक के बारे में बता दिया उसने. एक नेगेटिव इंटीजर है, ये फर्स्ट इंटीजर है आपका नेगेटिव. अगर दूसरा भी नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव का नेगेटिव से प्रोडक्ट करोगे पॉजिटिव आएगा. फर्स्ट तो हमें दिया हुआ है नेगेटिव है. अगर दूसरा पॉजिटिव आ गया, दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. ओके, तो वो क्या कर रहा है?
of the two integer if one is negative then their product must be positive. वो कह रहा है दो इंटीजर में से अगर एक नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए. तो यहां पर तो क्या रहा है, अगर दूसरा नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा. हमेशा पॉजिटिव तो नहीं आ रहा ना. तो जो क्या हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर. सपोज हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर आ गया 2 एंड अ पॉजिटिव इंटीजर. एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिया 3. अब दोनों का प्रोडक्ट देखो बच्चे, 0 बन रहा है नहीं बन रहा है, कितना बनेगा ये -6 बनेगा. तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इंटीजर हो एक नेगेटिव इंटीजर हो, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 कभी भी नहीं बनेगा. बन सकता है? आप सोचोगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा. नो बेटा, इट इज नॉट ट्रू. बिकॉज प्रोडक्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर. नेगेटिव तो हो गया, दूसरा इंटीजर क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था. पर 0 क्या है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो यहां पर 0 नहीं ले सकते हम. ओके, अंडरस्टूड बेटा. तो एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव, उसका प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगा. ओके, तो ये भी क्या आ गई बेटा, स्टेटमेंट आपकी फॉल्स आ गई. क्लियर? यस बेटा. 6th पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट. देयर डजंट एग्जिस्ट एन इंटीजर b such that for a greater than 1 a multiply b is equal to b multiply a is equal to b. वो क्या कह रहा है, भी ऐसा कोई भी इंटीजर b नहीं है जिसके लिए a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a किसके इक्वल हो, b के इक्वल हो. चेक करो भी ऐसा कोई इंटीजर है या नहीं है. a क्या दिया हुआ है बेटा, ग्रेटर